of you probably are coming here for the first time. This is the Kothari Hostel, and this is our Silver Jubilee year actually. So this is we thought of doing kind of these academic seminars as part of our 25th year here, and the first one we're having Professor Satish here. A little background on the hostel as well that is related to what we're having today is that D.S. Kothari, which is who this hostel is named after, was an educationist as much as he was a scientist. Many of you might know him from the Kothari Commission, in fact, named after him, which was related to education itself. And one of the key things that he suggested as part of the Kothari Commission was about equality of access to education for women, for minorities, and so on. And which is something which he spoke about almost 50 years ago today, which is in many ways relevant today. And the motivation for this speech today was not only about the 25th year, but also about contemporary things that we are seeing in India, because as students, it's important to have discussions in spaces about contemporary issues. And of course, little over a month ago, we saw the incident at IIT Bombay where Darshan Solanki lost his life in many ways relating to casteism, and for that, justice is yet to be brought. And of course, this is not something new. We had Rohit Vemula a bit over 5 or 6 years ago. We have cases like this all the time in India. It's not a one-time incident, and it's important to talk about casteism in these spaces. And of course, trends that we see in this are discriminations at all levels, from the level of early education all the way to hiring of professors. We see casteism play out in different ways. So for that we have Professor Satish, who many of you, I can see a lot of DSC faces, of course we know him. One of the most renowned sociologists in India. Those who are not in sociology will know him from his works in EPW, in the Indian Express. He writes there quite often on various topics, from casteism, class inequalities, caste inequality, contemporary politics. He has a pretty wide range of things that he writes about. And we're really lucky to have him here because, unless I'm wrong, he's retiring. So this is kind of a very special chance for us to listen to him talk. And hopefully we can hear him talk and then have kind of an informal discussion involving everyone and Professor Satish as well. And sure, yeah. Thank you. Thank you. So I just thought I'd bring the newspaper. This is today's newspaper. So everyone is comfortable with English? Yes. How many people don't know Hindi? दोनों में रहेगा। हाँ, वो थोड़ा हमारी आदत पड़ जाती है खड़े होने की। तो अगर यहाँ लोगों को हिंदी ना आती हो तो बेहिचक बताएं, इसमें कोई झिझकने की बात नहीं. So if you have difficulty with Hindi, please say so. There's no okay, so we'll try and keep both languages going. So I just wanted to begin by saying that we didn't arrange this report. It so happens that it has come out today. So just to illustrate that this is indeed quite contemporary, quite topical. So I would like this to be mostly question and answer. So I'll try and keep it short and talk about some very broad things. The thing to note to start with is that in a caste-saturated society like India, जैसा कि हम कहते हैं कि ये जातिमय समाज है, तो ऐसे समाज में जातिगत भेदभाव के लिए आपको कुछ प्रत्यक्ष रूप से अलग से नहीं करना पड़ता है. For a society like this and for something like casteism, which has deeply institutionalized, has very deep roots, it becomes the default setting of society. So to practice casteism, each one of us, we don't really have to do anything much explicitly. It's built into the system. You simply have to go along with what the system is doing and not interrupt the system. That's all it requires. It's not, people wake up one fine morning, or rather every morning,
and say, today I will practice casteism, and they go out and do something like that. No, it's not like that. It just happens naturally because it is built into the social structure. It has very deep roots, and it is built into our habits of how we behave and how we make it happen. So that's the beauty of default settings, right? आप अपना कंप्यूटर खोलते हो तो जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसमें सारा खुल जाता है, आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना पड़ता है, मशीन अपने आप कर लेती है सब कुछ. So society is set like that for producing casteism in our context, and it's only a more advanced form of something that is universal across the world, in all societies and across history. Those with any form of privilege have naturally tried to protect that privilege, have tried to preserve that privilege. And as modernity came, ideas about institutionalized inequality, de jure inequality. Every society has had and continues to have de facto inequality. व्यावहारिक गैर बराबरी हर समाज में है, इतिहास में भी रहा है, आज भी है, और शायद कई आने वाले कल तक रहेगा. सवाल है सैद्धांतिक गैर बराबरी. So the question is that of de jure, by law inequality, and that is the one thing that is exceptional about caste. Caste is an explicit, legalized form of inequality. It is not based on just practice alone. It prescribes inequality, right, as an original system. And it is that system that has had hundreds of years to seep into society. And the period of modernity that we have had, where we have explicitly broken with that system, is, one might say, in terms of law, 26th of January 1950, when our new constitution was put into effect. That is the first time in the history of our society where we have explicitly broken with the otherwise unbroken history of caste as an institution that defined our society. So we have had 70, 80 years, not even fully 80, 70 odd something years of this, whereas the caste system has reigned for hundreds of years. We are not never fully sure for how long, but very, very long. So given that this is so, we should not be surprised that it is still there, and it is in the face of the efforts of the constitution. But when we say constitution, matters are not that simple, because the constitution did something without historical precedent in our context, and it created for the first time in our society a being, a life form that had never existed before, and this is the unmarked citizen, pure citizen without any caste, without any religion, without any such markers. Through the new Constitution of India, this category of citizen was created for the first time. Before that, you were part of whatever social structure you were part of. You were, sometimes you might have been छोटे मोटे आप कोई राजा होते, या किसी जाति के आप मुखिया होते, या ऐसा ही आपका कोई स्थान होता समाज में. तो आपका जो भी स्थान होता समाज में, उसकी गिनती उस समाज के जो पैमाने हैं, जो प्रतिमान हैं, उनके मुताबिक ही होता. और ये सारे प्रतिमान और पैमाने जातिगत पैमाने. तो इसलिए जाति रहित अस्मिता का जन्म पहली बार हमारे संविधान के कारण हुआ 26 जनवरी 1950. या ऐसे आप कहें, दूसरी भाषा में हम कहें तो 26 जनवरी 1950 को एक नए जीव का
जन्म हुआ हमारे समाज में, वो है निर्गुण नागरिक। यानी कि सभी गुणों से रहित, जैसा हमने कबीर को गाते हुए सुना है, निर्गुण पंथ एक हुआ करता है कि सगुण पंथ और निर्गुण पंथ में यही फर्क है। तो एक तरफ तो संविधान ने इस निर्गुण नागरिक की स्थापना की, पहली बार हमारे समाज में, पहली बार। दूसरी तरफ उसी संविधान ने, जिसमें बराबरी का एक बहुत मजबूत कानून बना, साथ साथ आरक्षण का भी प्रावधान उसमें दिया गया। So on the other hand, the same constitution which created the unmarked citizen had a very strong provision for equality and protection from discrimination based on caste, creed and so on, all the other things. That is in fact what produced the casteless citizen, right? On the other hand, it also had a provision for reservation which was explicitly based on caste and tribal identities. तो दोनों तरफ, तो एक तबके के लिए हमारे संविधान ने उनको कानूनन सगुण बना दिया। यानी कि अगर आपको राजसत्ता से, सरकार से अपने हक मांगने हैं, तो आपको अपनी जाति की पहचान लगभग एक मोटर गाड़ी की नंबर प्लेट की तरफ अपने माथे पे लगा के आपको जाना है कि मैं अमुक जाति का हूं, मुझे मेरा हक दीजिए। जबकि दूसरी तरफ जो, जिसे हम निर्गुण नागरिक कह रहे हैं, उसको ये अधिकार मिला कि आपके जो हैसियत है, जातिगत हैसियत है, उसके कारण आपको जो फायदे मिल रहे हैं उनका दोहन आप करते जाइए, उसमें कोई रुकावट नहीं है। और किसी को ये हक नहीं है आपसे पूछने का कि आपकी जाति क्या है। जब तक आप सरकार से कुछ अपनी जातिगत अस्मिता के आधार पे कुछ नहीं मांग रहे, तो आपको पूरा अधिकार है अपने जातिगत जो आपकी हैसियत है उसका दोहन करने के लिए। क्योंकि हमारे यहाँ जैसे रूस में जो क्रांति हुई, तो सारी जायदादें सब जब्त हो गई। तो हमने जाति आधारित जायदाद को जब्त नहीं किया, हमने जातिगत जो अलग अलग तौर तरीके थे, बहिष्कार के जो तौर तरीके थे, उनका कानूनन हमने मनाही तो उसके लिए कर दी, अवैध हो गया वो। लेकिन उस अवैधता को एक तरह से कानून की तरफ से कार्रवाई करवाए बिना, समाज जिस तरह से चल रहा था उसको रोके बिना और आप कोर्ट कचहरी गए बिना आपको उसका फायदा नहीं मिलता। जबकि दूसरी तरफ ये कहना अवैध हो गया कि अमुक व्यक्ति को जाति के कारण ये फायदे मिल रहे हैं। तो ये अप्रतिसम, asymmetrical, this asymmetrical position that was, जैसे आप आईने में अपने चेहरे को देखते हैं तो उल्टा तो रहता है लेकिन प्रतिसम रहता है ना, सिमेट्रिकल रहता है, लेकिन ये asymmetrical, अप्रतिसम है। तो इस अप्रतिसमता के कारण समाज का एक तबका, उसकी जातिगत अस्मिता अति दृश्य हो गई, हाइपर विजिबल, और दूसरा तबका जिसको जाति का सबसे ज्यादा फायदा मिला उसके लिए जाति अदृश्य हो गई, उसकी जाति अदृश्य हो गई। या थोड़ा इसको और तफसील से, ऐसा नहीं है कि उसकी जाति लुप्त हो गई, पर इस तबके के पास उन्हें ये अवसर दिया गया, उन्हें ये चयन करने का मौका दिया गया कि किस संदर्भ में वे अपनी जातिगत अस्मिता को उभारेंगे और किस संदर्भ में उसे छिपा के रखेंगे। ये उनके ऊपर छोड़ दिया गया। किसी को ये अधिकार नहीं था कि उनकी जाति को एक तरह से उसके बारे में पूछने का, है ना, क्योंकि आप कह सकते थे कि मैं तो नागरिक हूं, मुझसे मत पूछो मेरी जाति क्या है। और दूसरी तरफ अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए या कोई और प्रावधान चाहिए सरकार का, तो आपको कहना पड़ेगा मैं अमुक जाति का हूं, मेरा ये सर्टिफिकेट है, मुझे दीजिए। तो इस अप्रतिसमता के कारण एक तरह की नई संस्कृति का जन्म हुआ जो आज़ादी के बाद से अब तक चली आ रही है।
sometimes I forget to switch languages. So if I keep going in one language, please sort of interrupt me and tell me that I'm speaking too long. Where was I? Yeah. So since independence, we have had this new culture, which is a very thin layer on a centuries-old society, which was living according to very different norms. Right? So as I said, we should not be. This asymmetry produces all kinds of contradictions and all kinds of ways of looking at things that are very amenable to feeding already existing prejudices. तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जिसका जवाब शायद कुछ लोग जानते हो, शायद न जानते हो, लेकिन ये अपने आप में इससे हम सीख ले सकते हैं। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में सबसे बड़ा कोटा कौन सा है? Which is the largest quota in Delhi University? By far the largest. OBC. नहीं. Unreserved. नहीं. EWS. EWS कहता हूँ. और तो बहुत छोटा है लेकिन है। मुझे खुशी है कि आपको इन सब तरह की आरक्षण के बारे में आपको पता है, लेकिन हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा कोटा है ना, वो आप सब यहाँ पीजी के छात्र हैं ना, कोई अंडर ग्रेजुएट तो नहीं है? अच्छा, आप लोग हैं। तो सबसे बड़ा कोटा हमारे पीजी से कोर्सेज के लिए है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट्स के। कितना कोटा है ये? 50%। और ओबीसी का कितना है? 27%। तो लगभग उसका दुगना है। और इस कोटे, ये सरासर कोटा है। What is a quota? Where only a particular category has access and other people cannot access those seats. तो अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना बीए नहीं किया, बीए बीएससी नहीं किया है, तो ये सीटें आपको नहीं मिल सकती, बाकायदा नहीं मिल सकती। कोटा और क्या होता है? यही तो कोटा है ना। और इस कोटे का नाम क्या है, आप जानते हैं? मेरिट स्ट्रीम। इसके बारे में आपने सोचा है कि हमारे यहाँ का सबसे बड़ा कोटा मेरिट स्ट्रीम कहलाता है, जबकि कई और कोटे हैं जिनको लेकर के रोज गाली गलौज होती है, रोज रोना धोना होता है, मारपीट होती है कई बार। ऐसा क्यों? और जो दूसरे कोटा की बात कर रहे थे उन्हें भी गिनाइए। वार्ड कोटा होता है, ये पीजी में अभी हाल में शुरू किया गया। वार्ड कोटा का मतलब जो एम्प्लॉइज हैं, मुझ जैसे लोग और मेरे बेटे बेटियों को, जिन्हें पहले से ही मेरे बेटे बेटी होने के कारण और यूनिवर्सिटी के माहौल में होने के कारण काफी कुछ फायदा पहले से मिला रहता है, उनके लिए भी अब कोटा है। और कई तरह के और भी कोटे हैं, और दुनिया में जो अलग तरह के कोटे हैं उनके बारे में तो हम जानते हैं। मैनेजमेंट कोटा एक बहुत मशहूर कोटा है, हुआ करता है बहुत सारे संस्थानों में, और कई तो सारे संस्थाएं लगभग कोटा पे चलती हैं, जो जिसे हम कैपिटेशन फी, डोनेशन, इस तरह के कहते हैं। तो मैं इस बात को क्यों आपके सामने ला रहा हूँ? मैं इसलिए ला रहा हूँ कि इन सबको, जो जिस अप्रतिसमता की मैं बात कर रहा था, वही कारण है कि कोई एक कोटा हमारी आंखों में चुभता है और दूसरे कोटे हमें दिखते नहीं, और जब दिखते भी हैं तो हम इन्हें इतना सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा नाम देते हैं कि उससे नफरत करना आपके लिए नामुमकिन है। मेरिट स्ट्रीम से कौन लड़ाई लड़ेगा? और उसके बारे में आप सोचिए, क्या कोई भी कोटा हो, SC ST कोटा हो, OBC कोटा हो, सड़क पे चलता किसी व्यक्ति को आप ला सकते हैं उस कोटे में? उसकी भी तो क्वालिफिकेशन होगी ना। और आजकल आपने सुना ही होगा, अखबार में भी छप रहा है, आपने देखा भी होगा कि रिजर्वेशन सीट के लिए घमासान मचा है, इतना कंपटीशन है उसके लिए। तो अगर वहां कंपटीशन है तो उसको मेरिट कोटा कहने से हम क्यों हिचकते हैं, जबकि दोनों में कोई फर्क नहीं है। तार्किक तौर पे दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप ही खुद सोच के देखिए, कोटा की परिभाषा क्या है, उस परिभाषा से कौन कौन से कोटा मेल खाते हैं,
और उनके बारे में हमारा किस प्रकार का रवैया है। तो ये जो मानसिक हमारी बनती है, जो स्थिति बनती है, ये कई तरह के पूर्वाग्रहों के कारण बनती है, और इन पूर्वाग्रहों को बहुत खुराक मिलती है इस अप्रतिसमता से। सो द काइंड ऑफ biases we have and prejudices we have get reflected in how certain quotas stand out for us. They call out to us and require us to protest or say something, while other quotas we can't even see them as quotas. And this is because the caste of one section of society has become hyper visible, and that of another society, another section of society has become invisible. Invisible, this is not exactly correct, but it is under the control of the latter group when they will make their caste visible and when they will choose not to make it visible. तो ऐसे में जिसे हम कास्टिज्म कहते हैं या जातिगत भेदभाव कहते हैं, वो है क्या चीज? ये दो तीन इसका मैं एक सरलीकृत आपको विवरण देता हूं। एक तो है ये, इसका एक पहलू है बहुत स्पष्ट, सरल, सीधा, प्रत्यक्ष, सबके सामने। ये है अवसरों की जमाखोरी, अपॉर्चुनिटी होल्डिंग। तो जिसके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, जिस तबके के पास हैं, वो अपने में ही उसे रखना चाहता है। ये लगता है कि ये लगभग एक कुदरती स्वभाव है कि हर ऐसे तबके का जिसके पास किसी प्रकार की सुविधा हो या किसी प्रकार का संसाधन हो, तो उस पर वो अपना कब्जा बनाए रखना चाहता है। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ कास्ट इज एज अ सिस्टम ऑफ अपॉर्चुनिटी होल्डिंग, एंड इन दिस इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर सिस्टम्स वेयर all kinds of elites across history and across societies have tried to hold the opportunities that is available to them. It is also a system of rationing and either giving out or not giving out recognition, social recognition. So what does this mean? This means that who do you recognize as your interlocutor, as your equal? Maybe not equal in a strict sense of having the same amount of money or occupying the same post as you, but fit to be in the same room as you, fit to be part of a larger conversation as you. So this kind of recognition, caste is a system for either granting or withholding that recognition. What we call untouchability is only an extreme form of it. And today, literal untouchability is not that important in terms of the workings of caste. So जिसे हम अस्पृश्यता कहते हैं, वो किसी को बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, अगर दिया गया तो किस हद तक, किस मात्रा में दिया जाना चाहिए, इस सब को एक तरह से परोक्ष रूप से जाति का संस्थान इसे तय करता है, और इसके जो तौर तरीके हैं उसमें हम रम जाते हैं, जब तक कि हमें उससे कोई दिक्कत नहीं महसूस होती, जिससे हम उसके बाद उसे टोकने लगते हैं। तब तक हम we go with the flow, right? We don't mess with things. That's also natural. And finally, caste is also, not surprisingly, if it is the first two, it will also be the third, a form of determining representation. कि किसको प्रतिनिधित्व का हक मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। तो ये तीन चीजों को आप मिला लीजिए, तो जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइफ चांसेस। इसके लिए मुझे आज तक कोई अच्छा हिंदी का कोई पद नहीं सुझाया, आपको किसी को पता हो तो बताइएगा मुझे। तो लाइफ चांसेस यानी कि आपकी जिंदगी में आप क्या क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, तो इसका अपनी जिंदगी का, आपके अरमानों का विस्तार कितना व्यापक हो या फिर कितना संकीर्ण हो, ये इन तीनों चीजों से तय होता है, और ये इसमें जाति का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो जाति का जो संस्थान है वो
इस तरह की इस तरह का एक इसको क्या है apparatus है जो इन तीनों चीजों को रेगुलेट करता है। इनको वो इसके बंटवारे का वो एक साधन है, उसका एक जरिया है। तो इस संदर्भ में जब हम कास्टिज्म की बात करते हैं, खासकर उच्च शिक्षा में हम कास्टिज्म की बात करते हैं, जातिगत भेदभाव की बात करते हैं, तो हम ज़्यादातर उस चीज़ की बात कर रहे हैं जिसकी जड़ें हमारे समाज में बहुत गहरी हैं और जिसको पनपाने के लिए कोई विशेष मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि उसे रोकने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके खिलाफ जाने के लिए हमें एक प्रकार की धारा है, आप धारा के विरुद्ध जाएंगे तो आपको और बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अगर धारा के साथ आप बहना चाहते हैं तो आपको मेहनत नहीं होती। तो ज़्यादातर जिसे हम कास्टिज्म कहते हैं वो धारा के साथ बहने के कारण होता है। और इस तरह के सांस्थानिक भेदभाव के बारे में एक बात ये है कि इसके लिए इसका पूरी तरह से नॉर्मलाइजेशन हो जाता है और जिसकी वजह से एक प्रकार की एक प्रकार आदतें बन जाती हैं। और ये आज का आप जरूर पढ़िएगा ये अखबार, कोई वैसे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसी बहुत सारे रिपोर्ट पहले भी छप चुके हैं, लेकिन ये बहुत ताज़ा है और संयोग से आज के दिन ही छपा, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके सामने लाऊं। अब इसे आप कोई षड्यंत्र न समझें कि हमने इसे छपवा दिया और ऐसा कुछ कर दिया, लेकिन इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कैसे ये संभव है, कैसे होता है ये। और भेदभाव का विषय ही ऐसा है कि जो भी इस पे काम करते हैं, रिसर्च करते हैं, उनकी ये पहले से शिकायत रही है या ऐसा मानिए उनकी किस्मत ही ऐसी रही है, उनकी नियत ही ऐसी रही है कि इसके लिए आपको प्रत्यक्ष पर प्रमाण जुटाना बहुत मुश्किल होता है। सो डिस्क्रिमिनेशन इज अ सब्जेक्ट दैट researchers on discrimination have long recognized that it is very difficult to get direct evidence of discrimination. So most evidence of discrimination tends to be inferential. तो जो आपको प्रमाण मिलेंगे वो परोक्ष प्रमाण मिलेंगे और उन परोक्ष प्रमाणों से आपको अनुमान लगाना होगा कि कैसे ये किस वजह से हुआ होगा और क्या भेदभाव भी इसका एक वजह होना वाजिब है या ये ऐसा संभव है या नहीं, इसके बारे में आपको सोचना होगा। तो ये है कुछ बातें जिस चीज़ को हम जाति के नाम से जानते हैं, तो उससे आप कोई एक बहुत ठोस प्रत्यक्ष कोई इमारतनुमा चीज़, जैसे आपके हॉस्टल की बिल्डिंग बनी है, मैं पहली बार आपके हॉस्टल आ रहा हूँ और बाहर से बहुत सुंदर लगता है आपका हॉस्टल। हमें पुराने ज़माने की याद है जब बाहर से खंडहर लगते थे हॉस्टल में, खासकर ग्वायर हॉल तो ये यानी एक तरह से पुरातत्व काल का कोई खंडहर लगता था। तो लेकिन बात यह है कि आपकी ये इमारत बहुत ठोस चीज़ है ना, ये बिल्कुल उभर कर आती है, क्षितिज से आपको उभर कर दिखती है। जातिगत भेदभाव ऐसी नहीं है, ये रमी हुई है, समाज में रमी हुई है। तो इसका प्रकट होना एक तरह से वो अपवाद शायद कुछ ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन लगभग अपवाद की तरह है, क्योंकि ये बड़े सफलता से और बड़े आराम से सामान्य जनजीवन, हमारे दैनिक जीवन में, हमारी दिनचर्या का ये एक स्वाभाविक अंग बन जाता है, सहज अंग बन जाता है। तो एक आसन हुआ करता है योग में, सुखासन, जिसमें बहुत कम आपको कोई तकलीफ नहीं होती और आराम से आप बैठे रहिए सुखासन में। तो जातिगत भेदभाव सुखासन में चलता है।
इसके लिए कोई आपको पद्मासन लगा के नहीं बैठना पड़ेगा, शीर्षासन नहीं करना पड़ेगा, कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। बस आप धारा के साथ बहते जाइए, उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए और ये अपने आप होता जाएगा, क्योंकि समाज की बनावट ही ऐसी है और एक तरह से आप देखें तो समाज का ढलान ही ऐसा है कि वो पानी अपने आप बहेगा। तो इसलिए जब हम कास्टिज्म की बात करते हैं तो आप किसी बहुत भयंकर चीज की खोज में ना निकलें, कोई दैत्यनुमा कोई चीज जो कोई अजगर है, कोई राक्षस है, ये हम सबके दिल में बैठा हुआ है और ये हमारी दिनचर्या में लीन हो गया है एक तरह से। तो इसको पहचानने में आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी और इसमें दखल आपको देना होगा, तब जाके इसमें कुछ होगा, नहीं तो बिना आपके कुछ किए ये सब कुछ चलता रहेगा। तो मैं अब यही रुक जाता हूँ, आपके सवालों और प्रतिक्रियाओं का मैं इंतजार करता हूँ। क्वेश्चन संख्या सर, शहरों में जैसे माना जाता है कि जाति नहीं, और जो उच्च शैक्षिक संस्थान है वो हमारे शहरों में ही है, तो वहाँ इस तरह की पहचाने किस तरह से की जाएगी चलती है? एक तो ये, और दूसरा सवाल, आज की अखबार में था वो स्कूल्स का वो मर्ज कर रहे हैं, दूसरी तरफ मर्ज कर रहे हैं, तो वहाँ आदि द्रविड़म स्कूल है जो लोअर कास्ट कही जाने वाली जातियाँ हैं, वो उसको बंद किया जा रहा है ये कह के कि वो गेटोइजेशन की प्रक्रिया को बढ़ा रहे हैं, और अब वो जो आदि द्रविड़म लोग हैं अब उस प्रक्रिया से निकल के अब उन्हें मुख्य धारा के स्कूलों में लाना चाहिए, तो इसको हम किस तरह से समझें? आपका दूसरा सवाल हम पहले लें तो चूंकि ये बहुत ही, जितना कि जैसे कि मैंने कहा है कि ये एक तरह से समाज का स्वभाव बन गया है जातिगत भेदभाव, तो इसे रोकने में सफलता पाना ये बहुत मुश्किल काम है, और इसके लिए हमें तरह तरह के प्रयास करने होंगे और लंबे समय तक प्रयास करने होंगे, और इसके लिए कोई हमारे पास कोई ऐसा रामबाण नहीं है कि ये टीप चला दो तो बस खत्म, ऐसा नहीं है हमारे पास कुछ। और हर जो पॉलिसी बनती है उसकी खामियां होती हैं, खूबियां होती हैं, तो इसको लेकर के लंबे अरसे से बहस चल रही है कि अगर किसी तबके को हम मानते हैं कि उसके साथ भेदभाव होता है या उसे बराबरी की जगह नहीं मिलती किसी संस्थान में, तो क्या उस तबके के लोगों को, उसके सदस्यों को अलग कर दिया जाना चाहिए। एक हम जाति से हटकर, क्योंकि जाति बहुत क्या कहते हैं, लोगों के तेवर चढ़ जाते हैं जाति को लड़ने के, तो इसलिए हम कोई दूसरा उदाहरण लेते हैं। हम लड़कों और लड़कियों के स्कूल के बारे में, तो इसके बारे में काफ़ी रिसर्च हुआ है, हमारे बंद बैठे हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट से। तो एक ज़माने में माना जाता था कि जहाँ लड़के लड़कियाँ दोनों हैं, को एजुकेशनल स्कूल, वो बेहतर है, क्योंकि जो सामाजिकरण होता है, जो सोशलाइजेशन होता है दोनों लिंगों का, वो बेहतर है। लेकिन आजकल जो रिसर्च निकल रहा है वो कहता है कि को एजुकेशनल स्कूल लड़कों के लिए अच्छा है लेकिन लड़कियों के लिए अच्छा नहीं है। तो इसी तरह से जब हम देखते हैं कि इसको लेकर के बहुत विवाद चला हुआ है कि मेन स्ट्रीमिंग, डिसेबिलिटी में भी यही है कि क्या स्पेशल फैसिलिटीज दे करके अलग से बनाने चाहिए फैसिलिटीज, या उनको मुख्यधारा में लाया जाना चाहिए। दोनों तरफ तर्क हैं, दोनों तरफ आपको इसका दे सकते हैं, तो इसको आपको संदर्भ अनुसार इसका जवाब आपको खोजना है। इसका कोई बना बनाया सब संदर्भों के लिए जो लागू हो ऐसा जवाब नहीं। सो यू नीड अ कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक आंसर टू दिस। इन सम कॉन्टेक्स्ट separating the disadvantaged group seems to help. In other contexts it doesn't help. So that's the sort of situation we have. Also इससे आपने ये पूछा नहीं, लेकिन मैं अपनी तरफ से यानी ये बम्पर ऑफर है
कि जब हम जाति की समस्या के बारे में सोचते हैं तो हमारी सोच में एक तरह का रुझान है जो हमारे समाज में, हमारे दिमाग में पैदा किया है, क्योंकि हम सोचने लगते हैं और एक तरह से ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये काम किया कि जो बात चल रही थी भेदभाव को लेकर के और बहिष्कार, एक तबके के बहिष्कार को लेकर के जो बहस चल रही थी, उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस विमर्श को, भेदभाव के विमर्श को बदल कर पिछड़ेपन का विमर्श बना दिया। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was part of the context. We can understand why it happened because it is, but that still does not mean that it was right. So the discourse of discrimination was transformed into a discourse of backwardness in the Constituent Assembly. So between 1932, when we have the Pune Pact and the birth of the idea of reservation in this form, we have from then to 1950, we have a huge shift in the mainstream thinking on this. So because of this, we now think of caste as a in fact, we think of caste itself as lower caste. When we think of, जब हम gender कहते हैं, तो आपके दिमाग में छवि किसकी आती है सबसे पहले? महिलाओं की आती है। तो या फिर आप वर्ण भेद की बात करते हैं, या when you talk about race, who do you think of first? You think of black people. So in the same way, when we think of caste, we have truncated it to lower caste, and we think of the problem of caste as being caused by some deficit, some shortcoming in the lower caste group. So even in this, you'll see many of the people being interviewed, or especially administrators and so on. They look upon this as a problem, that poor performance in academics, things of that sort. So you look for explanations in the victim group itself to explain this. तो ये भी इसका एक लक्षण है, चरित्र गुण की तरह से। और आपका पहला सवाल पहला सवाल कि ज्यादातर जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो शहर में ही स्थित। अच्छा, हाँ, नहीं, शहरों को ऐसा माना जाता है कि वो जाति रहित है। हाँ, देखिए, जाति रहित तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं। सवाल ये है कि लेकिन ये भी है, सही है कि हर जगह जाति एक ही मुखौटा पहन के सामने नहीं आती। तो हर जगह जाति के चाल चलन, उसके तौर तरीके सब अलग हैं। और इसका फिर वही जवाब कि आपको संदर्भ अनुसार आपको देखना होगा। तो शहरों की अपनी जातीयता है, गांव की अपनी जातीयता है, और जो यह सही है कि कई चीज़ें संभव हो पाती हैं शहरों में जो गांव में संभव नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि शहरों में जाति नहीं है। इसका जाति अस्मिता को के दायरे या उसको सिद्ध करने के तौर तरीके ये बदलते हैं। तो यहाँ आपको RWA में टकराहट हो सकती है, आपको पार्किंग को लेकर के कुछ ऐसी बहस हो सकती है, या इस तरह के चीज़ों को लेकर। तो आप ये मत सोचिए कि जिस तरह से जाति को लेकर के झड़पें होती हैं गाँव में, बिल्कुल उसी तरह की झड़पें यहाँ भी होंगी, ऐसा नहीं है। तो जाति का स्वरूप यहाँ अलग है, और प्रांतीय बहुत सारी विभिन्नताएं भी हैं, भेद हैं। तो इस तरह से आपको देखना होगा। आपको ये सवाल पूछना है, आप ये मान के चलिए कि जाति है, किस रूप में है, ये सवाल आप पूछिए, और इसको आप किसी एक संदर्भ को या किसी एक स्थान को ये सिद्ध करने दीजिए कि वहां जाति नहीं है। आपका डिफॉल्ट पोजीशन होना चाहिए कि जाति है, एंड अलाउ दैट सिचुएशन और दैट इंस्टीट्यूशन और दैट कॉन्टेक्स्ट टू प्रूव दैट देयर इज नो कास्ट rather than the other way. This is a more economical sort of way of, because
ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो मोटे तौर पे तो ये आपका सर मेरा नाम शौर्या है, मैं जेयू में पीएचडी कर रहा हूँ। आपने जो बोला कि कुछ कॉन्टेक्स्ट में कास्ट एक इन्फ्लुएंशियल चीज बन जाता है, तो खासकर ऐसे डिस्क्रिमिनेशन, एविडेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, तो मतलब एक टाइप का चीज जो दर्शन के केस में भी आईआईटी बॉम्बे का इंटरिम रिपोर्ट बोल रहा है कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का, लेकिन अलग अलग तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि वो डिस्क्रिमिनेशन तो हुआ है। तो जैसे एक बात रही थी कि कोई एक टाइप का लीगल गाइडलाइन लाया जाए जो ऐसे इस तरीके के जो मतलब एलीट इंस्टीट्यूशन है, आईआईटी हुआ या डीयू जैसे जगह हुए, जहाँ पे हमेशा गाली गलौज नहीं होगा या मारपीट नहीं हो जाएगा जाति पर, लेकिन इस टाइप का कोवर्ट डिस्क्रिमिनेशन होगा, उसके लिए कुछ रोहित एक्ट जैसा चीज लाया जाए। तो ये टाइप का अगर गाइडलाइन होगा तो उसमें क्या हो सकता है, उसको लेकर अगर थोड़ा। हाँ, सबसे पहले तो मुझे ये कहना होगा कि अब जब हम जिस स्तर की हम बात कर रहे हैं, यानी कि दिनचर्या में जो जिस तरह का भेदभाव है, उसको दूर करने के लिए कायदे कानून कुछ हद तक ही सफल हो सकते हैं, क्योंकि ये तो परस्पर संबंधों की बात है ना। तो ये सवाल है कि आपके रिश्ते किस प्रकार के हैं, आपकी मानसिकता किस प्रकार की है। तो मानसिकता तो कानून से नहीं बदलेगी। तो इसका मतलब ये नहीं कि कानून निरर्थक है या उसका कोई फायदा नहीं है, बन सकता है कानून, लेकिन जो असली लड़ाई है वो हम सबके बीच है। और इसको लेकर के जितने लोग और जागरूक होंगे और उन्हें खुद लगने लगेगा कि मैं कथित ऊंची जाति का हूं, तो मुझे भी इससे नुकसान है, जातिगत भेदभाव से मुझे भी नुकसान है। जब तक ये एहसास नहीं होगा हमें, तब तक हमें कोई इस पे ठोस इस पे हम प्रगति नहीं कर पाएंगे। पर मैं ये नहीं कह रहा कि कानून नहीं बनने चाहिए, पर कानून की सीमा को हमें पहचानना है, खासकर इस मामले में। So he is asking whether there should be laws about subtle forms of discrimination. So I'm saying that this is about our mutual relationships, where laws can only help up to a certain extent, and the fight is in changing attitudes and changing mentalities. जैसे ये जेंडर के केस कि जैसे जेंडर के केस में पॉश एक्ट होने से हमने देखा है कि कैंपस में एक टाइप का माहौल बनता है कि लोग कुछ चीजें बोलने से अपने आप को ही रोक लेते हैं, जो अगर ठीक से इम्प्लीमेंट हो। हाँ, जेएनयू से है ना। हाँ, तो उस तरीके से तो आप सोचिए, खैर आप तो अभी के हैं, मैं जेएनयू गया 1979 में। हाँ, तो वहाँ तो कोई लॉ नहीं था, कोई नहीं था, पर जेएनयू बिल्कुल अलग था, दूसरे कैंपस से बिल्कुल अलग। क्यों? कोई कानून नहीं था, किसी को कोई सजा नहीं मिल रही थी, और ऐसी कोई तो चीज़ तो नहीं है जेएनयू की बस स्वर्ग है, वही हो सकता है, कहीं और नहीं हो सकता। सभी हम और आपके जैसे साधारण लोग ही थे जेएनयू में उस समय भी और अब भी। तो अगर वहाँ हो सकता है तो दूसरी जगह क्यों नहीं हो सकता? आप ये भी देखेंगे, खैर अब तो यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हैसियत ही बदल गई है, दिल्ली में मेट्रो का हाल अलग है, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो लड़कियों का बसों में आना जाना बहुत ही दुर्गम, बहुत ही दुर्गम। अगर आप उनके साथ हो, आप अपने महिला दोस्तों के साथ आप घूम रहे हैं, हर बार एक न एक लड़ाई हो जाती थी बस में। अब नहीं होती। अब बसों में, खैर बस भी बदल गए हैं, बहुत कुछ बदल चुका है, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि परिवर्तन आता है, लेकिन अब हमें ये समझना होगा कि ऐसा क्यों हो। ये किसी हाँ कानून है, लेकिन कानून के कारण ये हुआ ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि हर बार आप किसी से झगड़ा होता है तो आप कोर्ट कचहरी तो नहीं जाएंगे ना। तो ये जो बदलाव है, ये कैसे लाया जाए हमारे बीच, हमारी संस्थाओं में, हमारे सामने यही समस्या है। और इसलिए हमें समस्या को सही तरह से पहचानना होगा, और हमें ये देखना होगा कि भेदभाव कथित ऊंची जातियों की बीमारी है। ये कथित पिछड़ी जातियों में कोई कमी या उनके पिछड़ेपन या उनमें कोई दोष इसके कारण नहीं है। ऐसा नहीं कि वो उनमें कोई दोष नहीं है, ऐसा कोई ऐसा इंसान होता नहीं है, लेकिन मूल कारण वो नहीं है। तो हमें अपना रवैया बदलना है कि आप जब भी कास्टिज्म की प्रॉब्लम आती है
So we have to address the so-called upper caste students, because that is where the problem is, right? And we have to convince people that discriminating is bad for you. Not that it will harm others. Of course it will harm others, but it will be bad for you. And that is what we have to develop, and I sincerely believe that it is bad for you. Because discrimination, even more than discrimination, we see now all forms of hatred. Now hatred is a very energy intensive emotion, right? You need to work at it. सोते सोते आपको नफरत नहीं आती, लेटे लेटे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कसरत करनी पड़ती है नफरत करने की, और इससे आपकी ऊर्जा बहुत जाया होती है. You waste a lot of energy. So there is a very practical explanation. It burns you up, hatred. Right? आपकी वो कहते हैं ना कई चीजों के बारे में कि आपकी उम्र कम कर देती है. तो आप जितना आप नफरत करोगे किसी से भी हो, वो आपकी जीवन को, जिंदगी को वो छोटा करेगा. तो इससे आपको अच्छा है, आपके दिमाग के लिए अच्छा है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपके भविष्य के लिए अच्छा है कि आप हल्की हल्की नफरत करो. ऐसी जम के इतना नफरत करने की जरूरत नहीं. तो वैसे ही भेदभाव भी हल्का फुल्का कुछ करो. ऐसा नहीं है कि हम सबको बिल्कुल बराबरी की नजर से देखते हैं, हम सब इंसान है ना. लेकिन जिस तरह के भेदभाव किसी की जान ले सकता है, उससे तो हम बच सकते हैं. ऐसा इतने गिरे हुए हम लोग तो हैं नहीं कि मेरे सुकून के लिए चाहिए कि आप आत्महत्या करो. ये कहाँ का न्याय? और न्याय हो ना हो, इस तरह का राज कितने दिन चलेगा? क्योंकि ये भी याद रखिएगा कि संख्या कथित निचली जाति के साथ है, और संख्या देर सवेर हावी होगी. तो इस तरह से भी आपको ध्यान रखना है कि आपका भविष्य इसी में है कि मैं किसी स्वर्ग की कल्पना नहीं करता जहां कोई द्वेष भाव है ही नहीं, कोई नहीं. अपनी खुद की जाति में कितना द्वेष होता है, ये जाति के सीमाओं को लादने के बाद ही द्वेष पैदा होता हो ऐसा नहीं है ना. लेकिन उसको काबू में रखिए, उसकी एक सीमा बांधिए, और खुद को भी और स्वस्थ बनाइए और समाज को भी स्वस्थ बनाइए. सर मुझे भी भेदभाव करना पड़ेगा. हाँ सर, मेरा नाम सिद्धार्थ है जी. आई एम स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री. मैं जीएनयू से पीएचडी कर रहा हूँ. मेरा एक ये सारे जेएनयू के लोग कैसे आ गए? कोई बात नहीं. तो मेरा एक क्वेश्चन है कि 1947 से 75 इयर्स इधर और 75 इधर, जो कास्ट की ट्रैजेक्टरी है वो किधर कैसे देखते हैं आप? मतलब किधर जा रही है, कैसे फॉलो कर रहा है? हाँ, वो इसके तो बहुत व्यापक सवाल है आपका. छोटा सा. हाँ, तो यही मैंने सबसे मुख्य बात यही है कि ये हाइपर विजिबिलिटी और इनविजिबिलिटी का जो ये अप्रतिसमता जो है, दिस एसिमेट्री ऑफ कास्ट्स एंड द जक्सटापोजिशन ऑफ द अनमार्क्ड सिटीजन and the permanently caste marked lower castes. This juxtaposition has produced a public sphere that is unable to deal with the question of things like caste discrimination. It is disabled from dealing with this question. So we have to first try and correct that asymmetry in our minds at least, and then there will be a context will be created for us to move forward. तो संक्षिप्त सा जवाब मेरा यही है, और इसमें बदलाव बहुत आए हैं. इन तीनों आयामों को आप देखिए जो मैं कह रहा था, लाइफ चांसेस के लिए जो हैं. एक तो अपॉर्चुनिटी, द होल्डिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी ऑन कास्ट लाइन्स, हाउ मच हैज इट चेंज्ड, इन व्हाट वेज हैज इट चेंज्ड, द होल्डिंग और द रेगुलेशन ऑफ रिकग्निशन एंड रिप्रेजेंटेशन. These are the three things that you need to think of as being affecting material life, material conditions, even though only the economic part is what we normally think about, but we should think about social recognition as well and political representation as well. And when I say political representation, I don't mean in the context of, say, reserved seats and so on, where the candidate who's elected from the reserved seats depends on the upper castes to get elected. I'm not talking about that. I'm talking about
real representatives of whichever group that we are thinking of. Yes, sir. So, for changing the way the caste river is flowing, we need to change the mentality, right? And for changing the mentality, I think all of us would agree that education is very important. And what we see is the contradiction that within the education system, where we need to change the goal should be to change the mentality. The most types of levels of discrimination based on caste we see in the educational institution. So how do you see this? And why do you think this is happening? you should be asking that question of yourself as much as you're asking of me. It's a good question. We need to think about this as to how and why and so on. Let us start with the idea of merit, which is often quite central. There is a sense in which we feel, I often say that merit happens to be the English translation of the Sanskrit word punya, and that is very relevant in our context. तो हमें merit लगभग यानी पुण्य नुमा चीज है. तो हमारे पास अगर merit है तो हम अपने को बड़े पुण्यात्मा समझते हैं. और पुण्यात्मा का मतलब हुआ कि आपका हक बनता है, कई तरह के आपके एंटाइटलमेंट्स बनते हैं इसके कारण, और ये नैतिक हक है, कानून हक नहीं, ये नैतिक हक है. सो यू फील मॉरली जस्टिफाइड in occupying certain space in society because you possess this thing called merit. Now all of us need to, especially in institutions like this, we need to think carefully about what merit is. I personally don't believe in the, sometimes in the sloganeering form, political activists say that merit is fraud, there is no such thing as merit. I don't believe that sort of thing. On the other hand, you do need to ask, what exactly is merit? Most of the time in practice in our society, merit is reduced to an incredibly thin thing, and that is marks scored in an examination. And you have to really think about what are the conditions that produce a particular mark in an examination. How is that, what is that an index of? What does it prove? Right? Not that it doesn't prove anything, but what does it prove? What does it justify? Where are you justified in placing weight on this number? And where are you, not justified? So you have to think of two things. One is the measurement of merit. This is a long story, so I'm just cutting it short. That is to say, what is the best way of measuring the competence or the ability of a person? This is not an easy question to answer. Educationists have broken their heads on it for a long time, but still that is a question. And secondly, you need to consider what is referred to in the debates as the force of merit. Suppose you have found a perfect way of measuring merit, and you determine that he has 2.3 units of merit, you have 3.2 units of merit, whatever. We have determined everybody's merit. So what? What should follow from that? That is the force of merit. We need to think about that, right? So again, this has to be a very context-specific decision, right? So you need to narrow down the force of merit that fits the test that was used, the criterion that was used to prove merit, right? So an excellent example is, I may be touching on a nerve here, तो माफ़ी चाहूँगा, UPSC की इम्तिहान होते हैं. तो ये आपको सरकारी अफसर बनने के लिए इम्तिहान होता है. तो आपने इम्तिहान दिया ज्योग्राफी में, आपने इम्तिहान दिया पॉलिटिकल साइंस में, किसी सब्जेक्ट में आपने इम्तिहान दिया. इस इम्तिहान में आपके कितने नंबर आए और आपकी भावी जो आपका जो करियर है एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, उसमें क्या रिश्ता है? इसके बारे में आप सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए. यहाँ दिक्कत ये है कि हमारे पास हम इस समस्या को उल्टी नज़र से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ वो वाकई वो असली समस्या भी है
कि पोस्ट है हमारे पास कितने होते हैं आजकल, एक साल का 900 रिक्रूटमेंट्स, और कोई 4-5 लाख उम्मीदवार। Around 10. ठीक है, यहाँ मैं दोबारा गुजर गया तो ठीक है 10 लाख, तो आप 9,90,900 इतने लोगों को आप मना कैसे करेंगे, किस आधार पे आप मना करेंगे? तो इस समस्या को सुलझाने के लिए इम्तिहान बनाएं, और इसके पीछे अगर हम ये मानने लगे कि ये हमारी यानी एक तरह से मेरिट को हम सुनहरे अक्षरों में जैसे पहाड़ जितना अक्षर में लिख करके अपने दिल में रखें, तो ये तो बेवकूफ़ी है ना, क्योंकि ये तो एक दिन का इम्तिहान है। आपने दिया, अच्छा दिया आपने, नंबर आए आपके, वो सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके गलत नंबर हैं, आपने पेपर आउट कराया, मैं ये नहीं कह रहा, पर इसका कहाँ तक असर होना चाहिए? क्या किसी इंसान को आप इसी पे तोलेंगे? यही तराजू है आपके पास, तो संदर्भ के अनुसार आपको मेरिट का इससे क्या सिद्ध होता है ये तय करना होगा। सो वंस वी स्टार्ट थिंकिंग लाइक दिस, आवर द क्रैंक्ड अप कैरेक्टर ऑफ डिबेट्स की जो बहुत गर्मागर्मी एकदम से इसका पारा चढ़ जाता है लोगों का इस विषय पे, तो उस पारे को आप थोड़ा नीचे लाइए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि किस चीज़ की हम बात कर रहे हैं। और दूसरा सवाल ये है कि जिन संसाधनों के आधार पर इम्तिहान में नंबर लाए जाते हैं, क्या वो संसाधन सबके पास बराबर मात्रा में है, ये भी आपको पूछना है। तो इन जब ऐसे सवालों को आप पूछने लगेंगे तो आपको एक तरह का क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी, अनुपात इसका क्या होना चाहिए कि अनुपात से बढ़कर आप बात करने लगते हैं तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इसलिए दैट्स व्हाट आई हैव टू से। आई एम नॉट सेइंग देयर इज नो सच थिंग एज मेरिट, देयर इज, बट it tends to be far narrower than what we think it is, and we need to give it its proper space, not less but definitely not more. Most of the time we are giving it far too much space, because वो ऐसा तो नहीं है कि आपको यूपीएससी में पंजा लड़ाने भेजेंगे, जो जीतेगा पंजा लड़ाने में वो उसको नौकरी मिलेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो कोई ना कोई तरीका खोजना है, तो ये ऐसा तरीका मिला है। नमस्ते सर, मैं अर्चित दिल्ली विश्वविद्यालय से एमए कर रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि इसके पिछले उत्तर जो आपने कहा, तो आपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात की जी, जो कि ऐसा हो जो रिजर्व्ड कैटेगरी से प्रतिनिधित्व ना हो, मतलब नहीं, मैं उस संस्था की बात कर रहा हूँ जी, यानी वो जो उस तरीके से जो चुना जाता है जी, उसका सही प्रतिनिधि होना, उसके आसार बहुत कम है। जी सर। तो मतलब उससे इतर जब हम प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, किसी संगठन की बात करते हैं, और आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि अगर अवसरों की समानता नहीं होगी तो तब तक मतलब असमानता है, तब तय होगा कि प्रतिनिधित्व कौन करेगा। और प्रतिनिधित्व का मतलब ये नहीं कि वो धारा से जुड़ जाए, बल्कि उससे क्वेश्चन करे जो जातिवाद फैला हुआ है। पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में ही जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व हम देखते हैं, जैसे बीएसपी बहुजन समाज पार्टी है जो कि दावा करती है कि हम इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन ब्राह्मण सम्मेलन जैसे आयोजित हुआ 2022 के चुनाव में, तो क्या ये खुद उस धारा में मिलना नहीं हो गया कि हम उस धारा में मिल गए हैं जो अपने कोर आइडिया के अपोजिट ही? हाँ, देखिए, अब आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जो मेरी, अगर मुझे यूपी की राजनीति समझ में आती तो मैं यहाँ नहीं होता। नहीं, लेकिन तो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर आप ये समझें कि हमारे यहाँ शायद दुनिया के सबसे पेचीदे चुनाव हमारे यहाँ होते हैं, कि इन चुनावों को समझना, इनके जो बहुत ही जटिल समीकरण होते हैं और समय समय पर बदलते रहते हैं, इनको समझना मेरे बस की बात नहीं है। तो इसलिए जब आप पूछते हैं कि अमुक चुनाव में ऐसा हुआ, ये मेरे लिए बहुत कह पाना बहुत मुश्किल है। और जो कहा भी जाता है इसके बारे में, वो सब कुछ घटित हो जाने के बाद पोस्ट फैक्टो
एनालिसिस होता है, और वो पोस्ट फैक्टो एनालिसिस आप जानती हैं, ऐसा हुआ तो हम ये दे सकते हैं एक्सप्लेनेशन, वैसा हुआ तो हम ये दे सकते हैं। तो ये यानी एक तरह से एक रहस्य है जो मेरे लिए कम से कम रहस्यमय है। पर आपको ये देखना होगा कि आप खुद को उनकी जगह अपने को रखिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों किया होगा हमने, और इससे उनको क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है, ये सब आपको सोचना होगा। तो अस्मिताओं की जब राजनीति होने लगती है तो अस्मिताएं पूरी तरह से हमेशा तार्किक हों ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अस्मिता चीज़ ही ऐसी है कि वो उसमें भावुकता का एक अंश होता है, हम सब में होता है, और इसलिए तार्किकता पूरी तरह से हावी हो गई ऐसा नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि वो तर्क का पूरी तरह से अभाव हो। तो ये सब आपको देखना होगा, परखना होगा इसको कि कहाँ क्या हो रहा है। तो हमें समाज का एक तरह से विद्यार्थी बनना है, इसे बारीकी से समझना है, और जहाँ आपको एक तरह से आपके स्टेक्स ज़्यादा है, जहाँ दांव पे लगा है आपके लिए कुछ, तो वहाँ आप पाएंगे कि खुद ब खुद आप उसमें रमने लगते हैं, उसको समझने की कोशिश करने लगते हैं। और इर्द गिर्द देखिए कुछ लोग काम कर रहे हैं ऐसा जो आपके काम आ सकता है, और इसके लिए आप भी कुछ कीजिए, आप भी इसके बारे में अपने सवाल को आप खुद भी कोशिश कीजिए उसका जवाब देने। Sorry, I forgot. He was asking about UP politics and the fact that the BSP was trying to ally with Brahmin associations. So I was telling him that if I understood UP politics, I would not be here. But our elections are extremely complicated. So linking what happens in elections to what is happening in society is a very risky business, and it is very context specific. I keep emphasizing context because that's my disciplinary orientation as well. Sociology is about contextualization, essentially. Right? So that was basically the answer. So just one question. No, you are coming back again, so just to be fair, we have to go. I'll come back to you later. Yes. So one of the arguments that is given against reservation by mostly by people who are from the upper caste communities is that like their friends who they have seen in school and college who come from economically privileged backgrounds are taking benefit of that reservation and getting to better institutions that they were able to despite of scoring more marks than them. And this is one of the reasons for bitterness that they inculcate within themselves. And this is why probably one of the reasons why discrimination in higher education institutions is taking place. So as you said that it's very difficult to know how tangible is discrimination in the society. But the reservations that the law gives is a tangible system. Like this percentage of seats is reserved, irrespective of what's your economic background may be, if you're coming from a specific community. In this context, do you think the existing system that we have, is it not itself perpetuating the bitterness that people kind of develop among themselves? Because it is not very personalized in terms of assessing how discriminated a person was when giving the reservation. What is your view on this? Sir, if I may please add something to it, like a part of question. Yeah. So, like generally when we like debate reservation, it's always argued, see the dropout rates in IITs or institutes of eminence. It is majorly those reserved people who are dropping out because they are not able to, I would say, survive the system. So, curriculum, extracurricular, or I would say that being into that cohort of elite people who are coming with that socio-economic and cultural capital. So it is often argued, it is also, I would say a subtle, critique of reservation system that focus on structural inequalities rather than, just doing tokenism of reservation. So how do you situate this question with this, like solution-oriented approach, which is often, thrown out? Yes, I've been speaking on caste for 30 years, and every discussion on caste turns into a discussion of reservation. It's our fate, our collective fate. So, but these are, you need to think about these questions. These are, it's true. The problem, as I think you said, that reservation is a concrete thing. Everybody knows what a lightning rod is.
very tall buildings, they have a lightning rod. What is the job of the rod? To attract lightning. So reservation as a concrete policy that stands out to our eyes attracts all this lightning, right? I started by talking about the biggest quota in this university, which none of you could name. If we are so concerned about reservation, where is our concern when 50% quota is the murder of merit? Right? Where is it? I mean, you have to think about all this, right? Let us assume that all that you say about reservation is right, but why focus it only this kind of reservation? There must be a reason. When you start thinking about that reason, you will realize many other things that are happening because of this way of. How do you think jobs are handled in the private sector? The primary mode of employment in the private sector is word of mouth. And what do you think word of mouth means? It means caste. Right? So everywhere except the UPSC jobs, which are a tiny fraction of all jobs, caste is at work. Caste reservation is at work. But there is no system, there is no rules, and it does not act as a lightning rod. In fact, it's the opposite. It is below the surface. No, I keep coming back to that. You think about the enormity of it. You are in this institution. Under your noses there is this reservation, and it is not visible to you. So this is happening on a large scale in society at large. So everything is reserved. Here it is reserved for the wrong people. And so we feel jalan hoti hai, takleef hoti hai. So start thinking about what has society done so far. Yes, you are at the point, ठीक है, आपकी किस्मत अच्छी नहीं है, you are born in this generation. Maybe you should have been born 3 generations ago, where there was no, people like us, we owned the whole world, right? But what to do? You are where you are, and you have to try and face the fact that we are in this situation, and that as an individual, I may be placed in a disadvantageous position because something is being done about a larger problem that has had a history and so on. And yes, I was not responsible personally for that history, but how can I be not responsible also fully? Something has to be and don't worry, most upper caste people today, their lives are not going to be destroyed. They will all land on their feet. 10 साल बाद आप देखिएगा कौन कहाँ है, इक्के दुक्के हो सकते हैं जिनके साथ कोई छुआ हो, लेकिन समाज, आपका समाज आपको बचा लेगा, है ना, क्योंकि उसका काम ही ऐसा है ना. So all I'm saying is start thinking with an open mind. And it's difficult, it's uncomfortable, and nobody likes to look at oneself. आईने में हम सब हीरो ही लगते हैं ना, तो जब आईने में आप हीरो ना लगे तो थोड़ा सा तकलीफ तो आपको होगी ही. पर वो एक नारा लगा करता था, जेएनयू में एक एजिटेशन हुआ था, तो ये इस तरह का नारा उस समय केवल जेएनयू में ही लग सकता था, कन्नड़ में लगता था, कि वो एक डायरेक्टर साहब थे हमारे, महालय जिनका नाम था, कि महालय रे मनुष्य रागी, कि महालय साहब मनुष्य बनो, है ना. तो मैं यही सबसे कह रहा हूँ कि आप मनुष्य बनिए, और मनुष्य बनने का मतलब ये है कि इस तरह की दुविधाओं का सामना करना, और जो अपने साथ एक तरह से ऐतिहासिक आपको लग सकता है कि एक ऐतिहासिक अन्याय हो रहा है, पर दूसरी तरफ ये किसके लिए हो रहा है, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा न्याय भी तो हो रहा है ना. वो शायद आपके खुद के फायदे के लिए नहीं हो, लेकिन समाज के लिए ये अच्छा है. आप यकीन मानिए कि हम साउथ अफ्रीका जैसा समाज नहीं चाहते. मैं 2-3 बार गया हूँ साउथ अफ्रीका. जब भी मैं जाता हूँ रात को नींद नहीं आती, क्योंकि समाज ऐसा है कि आपका शरीर बिल्कुल जकड़ जाता है, कि इतनी गैर बराबरी है कि हमें लगता है कि यहाँ तो रोज आग लगती होगी समाज में. और हमारे समाज में उसी तरह की गैर बराबरी है. गैर बराबर समाज में कोई भी चैन से ज़्यादा देर तक नहीं जी सकता. तो ये हम सब के हित में है कि हम कोशिश करें कि इससे हम निजात पाएं.
और ये मान के चलिए कि आपको जो इंडिविजुअल आपको मिलेंगे हर तरह के मिलेंगे, है ना? अच्छे लोग हर तबके में आपको मिलेंगे, बुरे लोग आपको हर तबके में मिलेंगे। तो यहाँ आपको देखना है कि आप सही, आपकी नज़र में कोई खोट तो नहीं है कि आप एक तबके से केवल एक तरह के लोगों को चुन रहे हो दूसरी तरफ से, ये सारा कुछ देखना होगा। तो इसमें कुल मिला के मैं यही कह रहा हूँ कि पहला कदम आत्मनिरीक्षण का है और उससे काफ़ी कुछ फायदा होगा। और मैं अपनी मिसाल देता हूँ, सन 90 तक मुझे नहीं लगता था कि मेरी कोई जाति है। मैं जाति से बहुत वाकिफ हूँ। मैंने गांव में 2 साल काम किया राजस्थान के, जहाँ पहला सवाल ये होता है कि उनका इस कशी बिरादरी, पहला सवाल होता था। तो जाति है, मेरी भी कोई जाति है, ये उस तरह से तार्किक तौर पे मैं जानता था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि जाति मेरे अंदर कोई घर है उसका। ये कोई बाहरी कोई लेबल है, तमगा है, कोई दूसरे लोग चिपकाते हैं। लेकिन 90 के बाद जब ये एंटी मंडल शुरू हुआ, तब मुझे इसी तरह का आत्मनिरीक्षण मुझे करना पड़ा और बहुत तकलीफ हुई। 1.5 साल तक बहुत तकलीफ हुई इस सब समझने में कि क्या हो रहा है, मैं कौन हूँ और मैं क्या समझता था और कहाँ से मैं बोलूँ ना बोलूँ, मेरी जाति बोलती है। जहाँ भी मैं जाऊँ ना, तो मैं भले ना कहूँ कि मैं अमुक जाति का हूँ, या मेरा शरीर बोलता है, मेरी भाषा बोलती है, मेरा जो अंदाज है वो बोलता है। तो इससे आप छिपाएं ना छिपाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो एक जमाने में था ना कि लोग अपना नाम केवल कुमार ऐसा कुछ रखते थे, तो मैंने जानबूझ के अपना नाम नहीं बदला। मैं चाहता हूं कि मेरी जाति नंबर प्लेट की तरह रहे मेरे माथे पे, और मैं बोलूं अपनी जाति के बारे में कि इससे मुझे किस तरह का फायदा मिला है। और जब हम ऐसा सोचने लगते हैं तो ये बात ये है ना कि इससे हमें बहुत सा I'm sorry, there are 2 very common, not very productive responses to the knowledge of self-privilege, and that is guilt and denial and perhaps shame. इसमें आपकी गलती नहीं है, कौन कह रहा है कि आपकी गलती है? तो ये सोचना कि अरे मैं तो अब जाति के बारे में मैं समझ चुका और मेरा दुर्भाग्य है कि मैं ऊंची जाति में पैदा हुआ हूँ, अब मैं तो गया। ऐसा होता है ना कि पहले जब ये रेस के कॉन्टेक्स्ट में जब हुआ तो प्रिविलेज्ड वाइट मेल, उसको लगता था कि अब मेरा क्या होगा, क्योंकि बाकी सारी दुनिया मेरे खिलाफ है और मैं तो सबसे प्रिविलेज हूँ। तो ये इससे कुछ बनता नहीं है। आपको आगे सोचना है कि आपका ये प्रिविलेज कैसे आया और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ये जो जिस तरह की बुनावट है उसको उधेड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारे बिना आप क्या कर सकते हैं। इस सब के बारे में आपको सोचना होगा। और मेरे पास कोई ऐसा कोई नुस्खा नहीं है कि ये कर दीजिए और एक चुटकी ये डाल दीजिए और 2 ग्राम वो डाल दीजिए और बन जाएगा। पर यही उबड़ खाबड़ रास्ता है, दुर्गम रास्ता है, पर इसी रास्ते पे चलना होगा। तो आत्मनिरीक्षण सबसे पहला जरूरत है, तकाजा है, जमाने का तकाजा है आज कि हम आत्मनिरीक्षण करें। जी आपने निर्गुण नागरिक का जिक्र किया, तो मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहा हूँ और पिछले 30 साल से डूसू के इलेक्शंस में मैंने अध्ययन नहीं किया है। मुझे लगता है कि निर्गुण विद्यार्थी का भी हम जिक्र कर सकते हैं कि डूसू में रिप्रेजेंटेटिवनेस कितनी है उसको देखने की ज़रूरत है। तो क्या वहाँ कुछ डिमांड करने की ज़रूरत है? एक तो ऑब्जर्वेशन था मेरा खाली, और दूसरा था कि आपने कहा कि प्रोटेक्शन और होल्डिंग ऑफ प्रिविलेज इज़ क्वाइट नेचुरल, तो सोशल साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है। तो मैं उसको थोड़ा सा चैलेंज करना चाह रहा हूँ कि वेदर challenging privilege is also equally natural in human societies, and that is also how change will come. Question is natural for whom? है ना? तो some things are natural for some people,
other things are natural for other people. So recognition of this, the naturalness of different, जो अलग-अलग आपकी स्थिति क्या है, point of view आपका क्या है, तो दृष्टि बिंदु, standpoint आपका क्या है, इस पे निर्भर करता है बहुत कुछ. तो आप जो निर्गुण विद्यार्थी की बात कर रहे हैं, मुझे पूरी तरह से ये किस तरह से लागू हो पाएगा ये मुझे दिख नहीं रहा अभी, क्योंकि दूसू के इलेक्शन में खासकर कैंडिडेट्स की जाति तो बहुत अहम है. दूसरे उदाहरण खाली. हाँ, तो और ये हमारे राष्ट्रीय जो चुनाव होते हैं उसके अनुकूल है. तो यहाँ कैसे आएगी मुझे समझ नहीं आता कि जिस पैमाने पे दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन होते हैं, तो उसके मुकाबले तो जेएनयू तो गुड़ियों का घर लगता है, छोटा सा, जहाँ कुछ भी हो सकता है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं, वहाँ नए नए आप नियम बना सकते हैं. पर ये तो वो कहते हैं ना कि मिनी इंडिया है, तो यहाँ तो वैसा नहीं चलेगा. और मेरे ख्याल से जाति कुछ साल तक तो मेरे ख्याल से कैंडिडेट्स अपनी पहचान के आधार पे ही इलेक्शन में उतरेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है. क्योंकि अभी तक तो ऐसा कोई कैंडिडेट मैंने नहीं देखा जिसका कोई ये नहीं है कि मैं फलाने सिंह हूँ, फलाने सिंह हूँ. यस. So when you talk about the awareness of caste and caste discrimination, we see that there is an understanding among especially the upper caste, the general category people, that they feel post the reservation, that they feel victimized. They feel like they have been denied an opportunity which they would have made through if not for the reservation. Do you think that this shift in the discourse, as you once already talked about, there's also a shift in this discourse of, the victims are now the upper caste, but there has to be awareness about their privilege, and where does this understanding of, oh, I am the victim now comes from? Yeah, you have to start by remembering what this is a solution for. What is the problem to which reservation is seen as an answer or a solution? The problem, stated very simply, is enforced exclusion. That is what the caste system was. The only answer to enforced exclusion can be enforced inclusion, and that is what reservation is. Left to itself, society will reproduce exclusion, as it does in every sphere where the law of reservation is not made applicable. Right? In the rest of society, we see the reproduction of crude, all these arguments. Take the top 1,000 richest people in India. How many non-upper caste will you find? Probably, even in the top 1,000, probably single digit. Right? So, and this is available for everybody to see. In the top 100, there are probably 2 or 3 names that are not Hindu upper caste. So, people get confused by the fact that, and this is a matter of statistics, by the fact that there are poor people among the upper caste. Yes, of course there are poor people among the upper caste, and there are rich people among the lower caste. Yes, of course there are. But at the level of society and at the level of politics, you need to talk about proportions. Who constitutes the majority of the upper class? The majority of the upper class is upper caste. So upper castes are disproportionately represented at the top and disproportionately underrepresented at the bottom. And with the lower caste, it's the opposite. They are disproportionately overrepresented at the bottom, and that remains true to this day. Right? So pointing to examples, oh, look at this, Karodpati Dalit. That is not an answer to that. Yes, it's true that that person is a Karodpati and he's Dalit. Yes. But what does that prove? How many such people are there? Like, this is my other favorite. This is because usually my film references don't work because I'm a different generation. But this particular film always works. शोले तो आप सबने देखी होगी ना. तो गब्बर सिंह क्या पूछता है?
कितने आदमी थे? तो जब भी आपसे ऐसा कोई उदाहरण, आई एम सॉरी, whenever somebody gives you an example like this, you ask how many members? So and the other side, if you start counting how many Brahmins, Banyas, Jains are there, it will take you a long time to finish the list. That is why they are not counting. Sorry? That is why they are not counting. Well, yes, that is another. इस पे कार्टून भी था कि मतलब वो उससे पूछते हैं कि आपके पास तो दलित होता है, वो BMW है, BMW वाला दलित है ये तो, हाँ। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कोई सैनिटेशन वर्कर है, वो कोई अपर कास्ट में दिखाई देता है। नहीं तो अनुपात का सवाल है। हाँ, अनुपात के सवाल में तो उस तरह से कि वो सवाल हमेशा लाद दिया जाता है दलितों की तरफ। तो इससे हमें मना नहीं करना, ऐसा नहीं कि गरीब नहीं होते, ऊंची जाति में गरीब नहीं होते, ऐसा नहीं। और गरीब होने का की कीमत तो हर गरीब को चुकानी पड़ती है ना, कुछ हद तक, चाहे वो किसी भी जाति का हो, ये बात सही है, लेकिन अनुपात कितना है ये देखना है हमें। So, when it comes to an idealist approach on the inception of caste is, what role does religion play? And I mean, this could be a very sensitive maybe for you, but and for the quote following this, that unless we fight the right enemy, we are not going to win the war. हाँ, see, the contribution of religion is very difficult to gauge in the context of caste. But my usual response to this is, our religion told us many things, right? We have very happily gone against religion on so many counts, right? So religion is a matter of practice, and religions which stay alive adapt themselves to changing circumstances. आजकल ऑनलाइन आरती हो रही है, हम हंसते हैं, लेकिन यही कारण होगा, ऑनलाइन आरती ही एक कारण बनेगी जिस धर्म को हम हिंदू धर्म कहते हैं उसकी लंबी उम्र का एक कारण वो भी बनेगा, है ना। तो इसी तरह से हमें देखना है कि बदलते हालात के मुताबिक अगर धर्म बदल सकता है, पंथ बदल सकते हैं, तो इस मामले में क्यों नहीं, है ना। क्योंकि इसका फैसला तो हम लोगों को करना है ना। ऐसा नहीं है कि हर चीज जो धर्म में था उसे हमने शब्दशः उसका हमने पालन किया। तो अगर इसमें हम बदल सकते हैं तो इसमें क्यों नहीं, ये सवाल तो पूछने लायक है ना। और इसमें आपकी आस्था पे कोई सवाल नहीं उठाया जा रहा है, आप आस्था रखिए अपनी, लेकिन आप ही की आस्था के होते हुए इतने सारे बदलाव आए हैं, तो आपकी आस्था को कोई क्षति नहीं पहुंची, कोई नुकसान नहीं हुआ, तो आप इत्मीनान से रहिए, आस्था को कोई खतरा नहीं है, तो उसको आप बदलिए, जैसा आप ठीक समझते हैं वैसा बदलिए। यस Sir, as you talked about, like when Constitution came into effect, there was an asymmetry that you talked about. So one section became hyper-visible and one section became kind of invisible. That was mainly for the upper caste. But since there was a reservation for the economically weaker sections, but then for that one should be from belonging to the upper caste. But when they have to make the section, they have to like tell their caste and everything. So is it like reinforcing this caste, upper caste identity again? So what role does yes, see, the EWS is a special case. Maybe I should just quickly say that, and that can take us towards the model. See, there have been the problem is that the same word reservation is used in our context for many different models, many different types of policies, and that causes endless confusion. The original constitutional reservation is what I'm going to talk about. This is what Babasaheb Ambedkar had designed. What happened in 1950 is a watered down version of what he had in mind. You should look at the 1919 Southborough Commission, for which Dr. Ambedkar wrote a submission, where there is a very good discussion of this vision of reservation. And this is, I invite you all to think about reservation this way. The critical thing about reservation is the unreserved category. The objective of reservation is to change the composition of the unreserved category over several generations. It is not going to happen immediately, but over several generations,
the job of reservation is to make it possible for those who are today excluded to tomorrow be able to compete and come in the unreserved category. So the unreserved category is our benchmark. So as the composition of the unreserved category begins to resemble that of society, at that time we discontinue reservation, right? So the unreserved category is the critical part, and the unreserved as for that Nirgundami, for every caste. That is what EWS strikes at. I don't care that it is effectively for upper caste. I care that it is undermining the unreserved category, because it takes us back to the Tamil Nadu, well, not Tamil, that was the Madras Presidency, what was called the Communal Geo of 1922, which was basically a proportionate distribution of posts among different castes. Politically, that might seem like a democratic solution, but it is not about the annihilation of caste. This model, Baba Sahib's model, which has because there was no unreserved category. 100% of the seats were divided amongst different castes. That means those groups are going to be there forever. And it is definitely a fairer distribution, because population is taken, it's not proportionate to population, but population is taken into account, right? That system perpetuates caste. This system it is not going to happen overnight, but over generations, it is a viable system for something like the annihilation of caste. Now, when you undermine the unreserved category, you are in a sense saying that you are turning away from the objective of doing away with caste. That is my problem with EWS, that it is taking away from us the whole point of reservation by hollowing out the unreserved category. So that's my model of reservation. Now, after that, there has been a model based on disadvantage. There is a model based on the Bangai, on muscle power. Right? How much? What is your electoral weight, and therefore what can you extract, and so on. For all of these, we use the word reservation. That causes a lot of problems, right? But I invite you to think of this model, the original model of reservation, where the key thing is the unreserved. And the objective over generations is to change the composition of the unreserved. So, thake nahi aap log? So my name is Tapan. I'm a resident. I'm a resident of this hostel. I have a question regarding, for example, politics in, let's say, caste in politics, caste in society, caste in economy. They are all parallel discipline and they work parallelly. So much literature has been written regarding the political upsurge, democratic upsurge. Do you see in past 75 years of this kind of a social upsurge, or it is yet to be coming, or how do you, like, your comments on this particular aspect? Right. Now we have to take the long durée view. We have to take a long-term view of something like caste, and we have to remember that when caste identities first become politically salient, they will not necessarily be progressive. But it is an inevitable phase of development that we have to pass through. And that is the phase we are in now, where different kinds of caste identities are becoming electorally salient and are trying to work out a better deal for themselves within the existing system. Once the limits of this are reached, then we'll begin the next stage of the thing of how to think of larger aggregations than simply caste. But there is no sort of bypass or flyover that will allow us to jump over this stage. So things are going to get worse with caste in the immediate future. There is no way of avoiding that. But we will come out into a better, after passing through this better. And that is why we need people like you to start thinking about caste. And I'm sure when everyone starts thinking about it actively, new insights will come.
because we all experience caste in different ways, right? So the more people think about it, the better it is. And we should try as much as possible. It's not humanly possible to leave aside all self-interest and all bias, but try to think about it in as wide a frame as you can, and see what you get. Sir, like you were mentioning the unreserved category, कि बाद में कुछ समय बाद कुछ और कास्ट ऊपर आ जाएंगे, इसमें केवल रिजर्वेशन है, लेकिन एक कास्ट के साथ एक सोशल और कल्चरल नोशन है कि हम ऊपर, मतलब हम ऊंचे हैं, हम बेहतर हैं, तो एक अपोजिशन नहीं होगा ऊपर अपर कास्ट से कि आप नीचे ही बने रहिए, क्योंकि अगर कोई कास्ट ऊपर आता है मान लीजिए कि वो हमारे बराबर होगा। नहीं, पर आपने ये नियम बना दिए ना अभी कि जिसके ज़्यादा नंबर आएंगे उसको मिलेगा पोस्ट। यूपीएससी का यही तरीका। तो जब नंबर आने लगेंगे सब तरह के लोगों के, तो फिर लोगों को लगेगा कि अरे यूपीएससी में रखा है क्या है ना। तो उस दिन का हमें इंतजार करना है। अब तक तो ये चल रहा है कि हमारे नंबर ज़्यादा है, हमें दीजिए, और या हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है क्योंकि रिजर्वेशन इसमें दखल देता है, प्योर मेरिट दखल देता है। तो मेरिट को पनपाने के जो संसाधन है वो सबके पास नहीं है, तो रिजर्वेशन के जरिए एक पीढ़ी के पास वो संसाधन आएंगे, वो अगली पीढ़ी को वो उस संसाधन देंगे, उसके आधार पे 2-3 पीढ़ियों बाद। ये तमिलनाडु का इतिहास देखिए, 1922 सबसे लंबा इतिहास है रिजर्वेशन का। 1922 पूरी एक सदी बीती है। अब वहाँ इसके बारे में आंकड़े जल्द ही आने वाले हैं। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में कर रही है एक स्टडी कि वहाँ अनरिजर्व कैटेगरी का अनुपातिक जो उसकी संरचना है वो समाज की संरचना से अब मिलती जुलती है। तो जब ये दिन आएगा तब तमिलनाडु जैसी जगह में रिजर्वेशन आप उसको खारिज कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह की वो समस्या के लिए ये को सुलझाने के लिए बना था, अब उसकी जरूरत नहीं। तो आंकड़े आएंगे तब पता चलेगा, लेकिन ये संभव है और तमिलनाडु ने कर दिखाया है। और वहाँ आंदोलन भी बहुत जम के चला था और उसके कई सारी खामियां भी हैं, वो सारी चीज़ें भी हैं, लेकिन 100 साल लगे। तो समय लगता है और पीढ़ियां लगती हैं। आप खुद अपने परिवार के बारे में भी सोचिए कि आप हमेशा से आपकी जो हैसियत है वो बनी हुई थी क्या? आपके दादा परदादा, कितनी पीढ़ियां लगी आपको यहाँ पहुँचने में? इस BS कोठारी हॉस्टल में आपको यहाँ बैठे हुए जब आप अपने को पाते हैं तो आपने परिवार का इतिहास खगालिए कि कितना समय लगा, तो उतना ही समय लगेगा दूसरों को भी ना। तो उतना सब्र तो हमें करना होगा, लेकिन आगे ये हमें साफ दिखे कि भविष्य हमारा ऐसा है तो सब्र करना थोड़ा आसान हो जाएगा। और इसके लिए आपको खुले दिमाग से सोचना होगा इसके बारे में। और ये मुद्दा ऐसा है कि इसके गर्मागर्मी बहुत जल्दी हो जाती है और ठंडे दिमाग से सोचना संभव नहीं हो पाता। तो इसीलिए कोशिश कीजिए जहाँ तक संभव है कि आप इसके बारे में सोचने के लिए। सवाल तो आप लोगों ने बहुत पूछे। अच्छा अच्छा, जनरली जो आम जनता है उसमें जो इनके विचार जो बनते हैं, अब मान लीजिए पूजा के नाम पे अगर कोई एक टेक्स्ट को बार बार पढ़ेंगे उसी हिसाब से कॉन्शियसनेस डेवलप होगा आम लोगों का। तो उसमें अगर कुछ लिखा है गलत तो अभी जैसे चल भी रहा है, लेकिन उसके लोग हमें दिखता नहीं कि जो जिनका पावर है वो बोलते नहीं, मतलब कि वो आगे आके नहीं बोलते कि चलिए इसको बदलाव करते हैं। लाइक आपने बोला कि कोई एक टेक्स्ट नहीं है, हमारे बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो किसी एक चीज़ पे ही फिक्स होने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप कोई एक हमें टेक्स्ट दिखा दीजिए जिसका आप शब्दशः जिस पे आप अमल कर रहे हैं, किसी भी धर्म का हो, आप दिखा दीजिए। और अगर आप बदल सकते हैं तो दूसरे संदर्भों में क्यों नहीं बदल सकते? तो आस्था का मतलब ये नहीं होता कि पत्थर की लकीर बन गई, जो लिखा हुआ है वो पत्थर की लकीर।
समय के अनुसार अगर बदले नहीं तो वो धर्म मुक्त हो जाएंगे, चले जाएंगे। और हिंदू धर्म में इतनी चपलता है, इतना लचीलापन है कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतने बड़े बड़े बदलाव आए हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि उसमें इस तरह की कट्टरता नहीं कि एक ही टेक्स्ट है और उसका ये शब्द है तो उसको हम नहीं बदल, ऐसा नहीं है। इससे लोग कहते हैं इसकी दिक्कतें नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि इतना लचीला धर्म है कि कभी इसके बारे में चिंता करने की कोई खास जरूरत नहीं। लोग अपनी आस्था बनाए रखेंगे और अपना जीवन जिएंगे। तो इसमें कई तरह के स्वार्थ मिले रहते हैं। जब कोई उठाता है कि फलाना धर्म का खतरे में है या फलाना ये है, तो इसके बारे में आपको हमेशा पूछना चाहिए कि ये इसके बारे में कहा जाता है कि लॉजिक में कई बार ये कहा जाता है कि कुत्ते को आप दिखा रहे हैं कि चांद वो देखो, वो कुत्ता आपको देखते है ना। तो ऐसा नहीं, यानी ये आपको इस पर ध्यान देना होगा कि इस चीज़ के बारे में आपको सोचना है। और घबराइए नहीं इससे कि धर्म है तो बहुत यानी उसमें लचीलापन नहीं है। हर धर्म में कुछ हद तक है और हिंदू धर्म में तो बेहद लचीलापन, और उस लचीलेपन से हिंदू धर्म को फायदा ही हुआ है मोटे तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर। सर लेकिन जो लचीलापन हिंदू धर्म में है वही लचीलापन कास्ट में भी है, वो भी अपना फॉर्म बदल रहा है। वो जो आप कास्ट क्रूर फॉर्म में समझते थे, तो वो भी ऐसा नहीं है कि कास्ट उसी फॉर्म में है, कास्ट भी अपने फॉर्म बदल रहा है। इसीलिए लोगों को जाति के बारे में समझने में परेशानी हो रही है आजकल। हाँ। कि लोग कहते हैं शहरों में नहीं है, लोग कहते हैं यहाँ नहीं है, क्योंकि वो कास्ट जैसा हम एक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, कास्ट ऐसे ऐसे होता है, ये इनको आप ये बाउंड्री क्रॉस नहीं कर सकते, या यही वर्ण है, जो भी है, जो बेसिक स्ट्रक्चर हम समझते हैं, तो वैसा कास्ट रहा नहीं है अब। वो भी उसमें इतना लचीलापन है, वो भी अपना फॉर्म बदल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये बात सही है। एक तरह से ये कास्ट को एक बहुत यानी जाति अगर आपकी वैरी है, दुश्मन है, तो बहुत ही यानी दम है इस दुश्मन में, जल्दी ये शांत नहीं होगा दुश्मन। लेकिन दूसरी तरफ इसी लचीलेपन के कारण हम इस बात की भी आशा कर सकते हैं कि एक दिन आएगा जब मैं अपनी जातीय अस्मिता को एक तरह से उसका मैं पालन कर सकूं, बिना किसी और के शोषण किए, बिना किसी और को कुछ दुख दिए। और जहां, क्योंकि आप सही कह रहे हैं कि जाति की, और ये संभव हो पाएगा या नहीं ये खुला प्रश्न है, कि जाति का मर्म है परस्परता। कि हमारे यहाँ जो उत्तर भारत में जो शब्द है ना औकात, ये इसका मर्म है। किसी अकेले इंसान की औकात नहीं होती, औकात परस्परता है उसमें। तो उस परस्परता का ही एक तरह से ये है कि हम हमेशा जब जाति की हम बात करते हैं तो हम कोशिश कर रहे होते हैं किसी न किसी तरह एक ऐसी धारा की हम कल्पना करें जिसका एक ही छोर है। ये तो असंभव है ना, तो दोनों छोरों को साथ लेके चलना है। और ये भी मैं उदाहरण कई बार देता हूँ कि कबीर का जो मशहूर दोहा है कि प्रेम गलिया की संकृत जामे दोनों समाये, उसका विपरीत है जाति। जाति एक ऐसी गली है जहां दो ही समाते हैं, उसमें आप जब तक दोनों छोरों को आप साथ लेके नहीं चलेंगे, ये आपके पल्ले नहीं पड़ता। और ये बहुत मुश्किल होता है, दोनों छोरों को एक साथ उसके बारे में सोचना बहुत मुश्किल होता है, और इसलिए इसकी पेचीदगी बढ़ती है। तो हो सकता है कि ये हमें मात दे दे, लेकिन खुले दिमाग से जब हम सोचना शुरू करें तो कम से कम लड़ाई तो लड़े, यानी हाथ नहीं खड़े करने पहले से। तो अब
हमें से कुछ लोग चाय का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, इसलिए इतने सारे सवाल। सर ये एक तरह की नैतिक उम्मीद नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट आत्महत्या कर ही रहे हैं और जो नहीं कर रहे हैं वो किसी न किसी से परेशान है। शायद वो परेशानी समाज के सामने नहीं आ रही और बड़ा प्रश्न के तौर और आप मतलब एक उम्मीद की तरह ही देख रहे हैं कि वो समाज बदलेगा, जबकि वो समाज रोहित की हत्या पे और दूसरी हत्याओं पे मौन रहता है। तो इस तरह का मौन समाज की में, और वो कल्पना नहीं है। इसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यहीं के ऐसे हैं जो मतलब कि जाति आधारित आरक्षण है, तो उस पे कोने में जो वो लिखा होता है उसको वो छुपाते नहीं, वो ऐसे कैसे प्रोड्यूस कर देते हैं। और वो फिर इस तरह के प्रश्न विद्यार्थियों से किए जाते हैं कि मानसिक रूप से वो परेशानी, वो विद्यार्थी है तो वो संस्थान छोड़ देता है या कहीं और होता है, वो सामने नहीं आ पाते। हम हत्याओं के रूप में अपनी परेशानियों को देख रहे हैं, पर बहुत सारी आपकी बात एक तरफ सही है, लेकिन आप भी गौर कीजिए, कुछ नहीं बतलाते क्या वाकई सन्नाटा छाया हुआ था रोहित वेमुला के बाद? सन्नाटा था क्या? ऐसा तो नहीं है। और इस पे देखिए छपा है, पर उस सन्नाटे में इससे दुनिया बदल जाएगी मैं नहीं कह रहा। दिल्ली विश्वविद्यालय में कुछ ही लोग थे जो, और वही जिनको हमेशा कुछ ही लोग हैं वही शुरुआत कुछ ही लोगों से होती है। और मैं तो देखता था जितने समूह, वो दलित समूह ही ज्यादातर लगे हुए थे, या जो मार्क्सवादी समूह है वो समझने लगे हैं जाति की जरूरी चीज है बात करने के लिए, तो वो जुड़े हैं। लेकिन एक जो आप कह रहे हैं कि बदलाव आ रहा है, वो बहुत ही सीमित बदलाव है कि रोहित के बाद भी आप देख रहे हो वो परेशानियों को, तो मतलब ये बहुत बड़ी उम्मीद के रूप में नहीं है। मतलब ये टकराव की स्थिति हो सकती है कि अब हम बार बार टकराव ही करना पड़ेगा, और जब भी टकराव होता है तो प्रिविलेजेस तो निकल जाता है उसके, क्योंकि नेटवर्किंग में है वो सब, और उस टकराव में नेटवर्किंग वाले लोग तो टिक जा रहे हैं, लेकिन जो दलित है वो किसी न किसी रूप में खामियाजा लगातार भुगत रहे हैं। ये भी हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे लोग इसके प्रति ज़्यादा इस पे ध्यान जा रहा है, धीरे ही सही, लेकिन मेरे ख्याल से बदलाव आ रहा है और इसको रोका नहीं जा सकता। इसकी गति से भले ही आपको असुविधा हो, आपको बहुत ही धीमी गति लगे, लेकिन देखिए उम्मीद पे ही जीता है इंसान, तो उम्मीद आप कैसे छोड़ सकते हैं? और ऐसा नहीं कि ये गैर तार्किक उम्मीद है या कोई हवाई उम्मीद है। गति में मैं आपकी बात मान रहा हूँ कि गति धीमी है, लेकिन बदलाव आ रहे हैं। मैंने खुद देखे हैं, मैंने कहा ना आपसे, मैं 30 साल से बोल रहा हूँ इस विषय पे, तो बदलाव आए हैं। जिस तरह के सवाल आते हैं, जिस तरह के अब तक 10 साल पहले और शर्तिया तौर पे मैं कहता हूँ 15 साल पहले हल्ला हो गया तब तक, कोई इतना उत्तेजित हो जाता कि बात आगे बढ़ नहीं पाती, और अब हम लोग यहाँ तक ला पाए हैं इसको, तो ये कदम आगे है। इससे मैं नहीं कहता कि कोई क्रांति आ गई, ऐसा नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे आई, समाजवाद को। सर जैसे किसी ने पूछा है कि इसके लिए कुछ लॉज बना सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं आपने कहा, क्योंकि ये बिहेवियर में होता है। मैंने नहीं कहा कि पॉसिबल नहीं है, मैंने कहा कि उसकी लिमिटेशन उसका असर सीमित होगा। अच्छा है, कायदे कानून लाना अच्छा है सर, या तो मतलब ऐसा भी कर सकते हैं कि सेंसिटाइजेशन किया जाए, जब ओरिएंटेशन होता है तो सेंसिटाइज, जैसे ये लेक्चर हो रहा है तो एक तरीके का सेंसिटाइजेशन है ना, लोगों को पता चल रहा है इसके बारे में। क्योंकि जैसे कुछ मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं, सरनेम पूछते हैं कि आपका सरनेम क्या है, कि अगर वो कुमार है तो उसके आगे क्या है, इस तरीके से पूछते हैं। या किसी का सरनेम पांडे होता है तो अपने आप पांडे जी हो जाते हैं, लेकिन कोई दूसरा सरनेम पे वो जी नहीं लगता है,
तो इस तरीके की चीज़ों के लिए सेंसिटाइजेशन मतलब कैसे होगा, इंस्टीट्यूशन लेवल पे कैसे किया जा सकता है, इस पे तो मतलब देखा जा सकता है। हाँ, इस पे किया जा सकता है और हर जो औपचारिक इस तरह की का प्रयास होगा उसकी सीमाएं होंगी, लेकिन उसका असर भी होगा, देर सवेर उसका असर भी होगा। वही मैं आपको उदाहरण देता हूँ ना, पहले की जो डीटीसी की बसों में लेडीज सीट पे बैठ जाते थे मर्द, तो कोई आके कहती कि जो कोई बच्चे को उठाए हुए भी है गोद में, वो कहती कि लेडीज सीट है, तो उठते कि जो बिल्कुल बदतमीज किस्म के लोग, कहाँ लिखा है? वहाँ लिखा है, वहाँ बैठ जाओ। आज किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसा कहने। और मेट्रो में खैर एक क्लास का एंगल बन गया है थोड़ा, लेकिन मेट्रो में बहुत ज़्यादा बदतमीजी होते हुए आप नहीं देखेंगे। तो ये बदलाव तो आया है और इसी तरह से धीरे धीरे दूसरे बदलाव भी आएंगे, लेकिन इसके प्रति हमें चौकन्ना होना है। हमें जो आप सेंसिटाइजेशन की बात कर रहे हैं वो अपने घर से शुरू होती है, खुद से शुरू होती है, आत्मनिरीक्षण से शुरू होती है कि आप हर एक को यहाँ पूछना है कि मैं इस समस्या में कौन सी भूमिका अदा करता हूँ, जाने अनजाने मेरी भूमिका क्या है। सर इंस्टीट्यूशन लेवल पे भी बहुत कुछ किया है, जैसे रैगिंग के लिए करते हैं, एंटी रैगिंग एफिडेविट करवाते हैं, उस टाइम पे अगर इस चीज़ को सेंसिटाइजेशन के लिए थोड़ा ध्यान दिया जाए कि कैसे इसको सेंसिटाइज किया जा सकता है। मेरे ख्याल से एक आध साल में ऐसा आ भी जाएगा, खासकर चुनाव के करीब करीब इस तरह का कुछ आ जाएगा, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारा काम बचा रहेगा। अच्छा है इस तरह की चीज़ें आए तो लेकिन उस पर फिर अमल करना, उसको एक तरह से उसे व्यवहार में बदलना होगा, उसे सहज बनाना होगा। So I've been doing sociology for 5 years now, and I was very surprised to notice one thing, that as long as a particular caste is speaking for itself, it's not a problem. But if it's somebody else speaking for them, it's always a problem. Yeah, that's the I would like to add issue. something to it. So, like when we talk about the humorous context when caste is taught, okay? So when someone is making a joke, so similarly on adding on her request, then when someone who is belonging to a particular caste talks or puns about his own caste, how is it different, or how should be seen when somebody else makes a fun or jokes about it? Yeah, obviously we have to be careful about this, and there is no set rule for this. It depends on how. जैसे दोस्तों में गाली गलौज बहुत होती है, एक दूसरे को हम गाली से संबोधित करते हैं, वो अपनी एक तरह से आत्मीयता का की पहचान है ना, कि ऐसा भी होता है, लेकिन वही आप दूसरे के साथ नहीं कर सकते ना। तो ये होता है, लेकिन इसके बारे में आपको सावधानी बरतनी है कि कहाँ क्या ये हो जाएगा, किसको कैसा लगेगा। ये हर एक में एक आप पैमाना अपना सकते हैं कि मैं उस जगह में होता तो मुझे कैसा, ये आपको सोचने की कोशिश करनी कि, और जब लोग उसे टाल देते हैं कि मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा टाल देते हैं, तो आपको ये सोचना है कि किसी को चोट पहुंचती है, तो अगर आप उस जगह होते तो आपको कैसा लगता है कि आपके बारे में इस तरह का मजाक किया गया है, और बाद में वो उसे टालना चाह रहा है कि अरे ये क्या मजाक था। तो इसके बारे में हम सबको सीखना होगा। और सॉरी यू I forgot what you. So as long as the caste is speaking for itself. Yes, the question of representation is a very complex question, and we need to be aware of it, and particularly in the. See, we have had this happening in. There are words for it now. Mansplaining. You know what mansplaining means, yeah? Where men try to explain something. That has to do with women, and think they know better, and sort of proceed to do that. So there has been, we have to be sensitive, and I have to say this is something I've had to learn as well. The fact that you're speaking for a good cause does not end all matters. You have to also ask, how much space are you occupying? Who else could have occupied that space? And so on.
right? So questions of representation you do have to think of, which is why I keep saying, especially when it comes to caste, we have placed so much emphasis on one side and not on the other. So nowadays I speak as somebody from the upper caste who's trying to talk about upper caste privilege. And that we have the perfect right to do, and we are, how shall I put it, very qualified. So we should be doing that, because you can't have disprivilege. That's the nature of discrimination, right? You need a discriminator, and that's the disadvantage of disadvantage. A disadvantage can be kudrati, right? A crime without a perpetrator. But discrimination requires somebody to discriminate. And how is it that you, perhaps unknowingly, perhaps knowingly, end up discriminating? Descriptions of that are helpful. They are helpful because we are not simply saying, oh, I'm so guilty, I'm upper caste. You're not saying, how terrible I'm upper caste. You're trying to do something about that without falsifying who you are or pretending to be somebody you're not. You're trying to contribute something constructive to the discussion, right? So that is what those of us who are from this side, that is what we should be doing, that we should be talking about the ways in which it's difficult to do, and we don't have ready-made, sort of examples, and it very easily starts to sound as though you're showing off, or that you're singing songs about your merit, right? That it starts to seem like that. So you have to be very careful about that. So for example, I used to try to do this, that I feel ashamed of the fact that I've been selected at every interview I've given. Right? Because why do you feel ashamed? Because once you realize that maybe it was things other than you and your ability that got you selected. Once you realize that, it's a humbling experience, right? And a little humility for all of us is very good for us. सेहत के लिए बहुत अच्छा है. तो अपने बारे में जो भी हम सबकी आदत होती है, अपने बारे में खुशफहमियाँ एक तरह से पैदा करना और उन्हें संजो कर रखना. तो एक आध बार उनका जब पर्दाफाश होता है तो तकलीफ ज़रूर होती है, लेकिन मेरे ख्याल से इस तरह के विवरणों से शायद हम जिस अंधी गली में हम फंसे हुए हैं उससे निकल पाने का हम प्रयास कर सकते हैं. आप कुछ पूछना चाहते हैं? सर कुछ महीने पहले JNU के वॉल्स पे there were some lines written against the violence. So words were used which was attempted. तो सर जब एक स्पेस मिल रहा है कि जो डिसएडवांटेज कास्ट के लोग हैं, तो कई बार उस तरह की वॉइस आ रही है, यहाँ पे पर्सन नाशपति है. हाँ, तो वो होता है कि कास्ट वायलेंस की सिचुएशन. हाँ, हो सकता है ये सब, और हमें ये इस में से कैसे शिष्ट भाषा में इसे कैसे व्यक्त किया जाए, इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ. हमारी ये अपेक्षा यानी कि जो जिसका शोषण हो रहा है या जिस पे अत्याचार होते हैं या जो निचला तबका है जिसे दबाया जा रहा है, इस अनुभव का असर ऐसा होगा कि कोई आदर्श इंसान पैदा करेगा. ऐसा ये अनुभव ऐसा नहीं होगा. मुझ पे अगर मेरे साथ भेदभाव सारी जिंदगी किया गया है तो मुझ में द्वेष होगा, मुझ में आक्रोश होगा, और वो किस तरह से व्यक्त होगा ये जरूरी नहीं है कि वो बहुत शिष्टता के साथ व्यक्त हो. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हम अगले को शोषित होने की अवस्था से सीधे एक शिष्ट और नेक इंसान बनाने की स्थिति बना दें, है ना? लेकिन जब तक आप स्थिति क्या है
वस्तु स्थिति क्या है, इसे जब तक आप पहचानेंगे नहीं तो शुरुआत ही नहीं होगी। तो यही मैं कह रहा हूं कि आगे का रास्ता दुर्गम है और आसान नहीं है और कई तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी जिन्हें सही ठहराना सही नहीं होगा, लेकिन उनसे निपटना होगा, उनसे जूझना होगा। Sir, initially you was saying that co-education institutions. So initially you was saying that co-education institutions are beneficial for the males. So like kindly, can you elaborate? You probably know this firsthand, no? What sort of school did you go to? School, quite. See, that's why you're asking this question. I have to tell you the story of, I happened to go to a co-ed school throughout, from nursery to, I only did 11th standard. And I came to what was then an all-male college. It so happened that it was the last year it was all-male, but it was an all-male college. And I have to tell you, I was shocked at how my classmates who came from all-boys schools, including very fancy, very famous schools, behaved barbarically, what I thought of as barbarically when it came up. See, I think that what for the boys, what co-educational schooling does is that at an adolescent age, before you are able to think very consciously about these things, and at a time when hormones are dominant, right? It makes you, suddenly it makes you realize at some point that girls are not only a collection of body parts, they are actually persons. And this realization for the male mind is, it changes your life. You don't even realize that, and that is what co-educational schools tend to do, where it suddenly clicks in your head. And you are, not everyone, and I don't say all problems vanish because of that, but at least the basics get sorted out. That was the sense in which I was saying that it's good. But on the other hand, it has been found that girls get encroached upon, their space gets encroached upon in a co-educational school. So girls tend to do better in an girls-only environment at the school level. This is just about research that's, I don't know enough. You should ask education people more about this. But this is what I believe is the case. So the civilizing effect on boys, is it enough to justify the disadvantages for girls? That's the question. But it was very, after my first year, girls came into my college, and it was very, very bizarre how people were. So you will always see that there is a very extreme difference, like when a boys are in their boys gang, when some of them you like often see in hostel talking to their girlfriends, and you see the discourse and the change of their pitch, how different they talk when they are near women, to how they appear or how they present themselves when they are among boys. So a woman's face always makes a man gentle, ultimately. Most of the time, like good women, sorry. No, there are, I mean, I think things are very different now, so, you know, and this is hardly a subject on which you need me to tell you. I'm sure you know far more about it than I do. Before we get Satish to talk about another whole topic, we'll end the talk. So on behalf of the Student Council and the hostel, thanks everyone for coming. Really great. And thank you Satish, of course, for 2 hours plus and now talking. And I hope everyone who has come has filled that sheet so that we can send, because we hope to make this a series, so when we have further speakers come, we'll reach out to everyone who came. And thank you again. Thank you, Satish. Thank you all for your patience. Thank you.